So today we will study existence and uniqueness of first order initial value problems. In previous lecture we reviewed some basics of first order equations, and you can solve some of the equations, in particular linear or some special cases. So now we will consider non-linear first order equations and discuss about existence and uniqueness of the solutions. So I had defined one equation dy by dt equal to f of ty with one condition, that you know solution at t equal to t naught. So we are starting with point t naught, and at t naught I know the solution, which is y naught. So differential equation with one condition is known as initial value problem, and in short we will write IVP. So now I am taking one example in which you will have unique solution. Let us take dy by dt equal to 2 times t with one condition: when t equal to 0 solution is 1. Okay, so on integrating and separating the variable, you got dy equal to 2t dt. So on integrating, you got y equal to t square plus some constant c. Okay, so when t equal to 0, you know the solution. What is y? Y is 1. So this gives 1 equal to 0 plus c. So c equal to 1. So we have y equal to t square plus 1, and this is unique solution of given IVP. Okay, एक ही है without constant. Second example I'm taking, let us take t y dash equal to y with one condition, initial condition. So in the same manner you separate the variable. So you got dy by y equal to dt by t, and integration will give you left hand side log of y equal to log of t, and you can also write constant as log of c. So on integration, you got y equal to t times some constant c. Okay, so use initial condition. जो y के ब्रैकेट में है वो t है. Okay, so since you are writing y is a function of t, so whatever inside, that is the value of t, and this is initial value. So when y equal to 1, t equal to 0, so this will give you y1 t0. Okay, so 1 equal to 0, so which is not possible. So this IVP don't have solution. Do not have a solution. So in that case, you got no solution. So depending on the situation, you may have unique solution, no solution, and third example I am taking that you have infinitely many solutions.
So third I'm taking ty dash equal to y minus 1 with same condition y naught equal to 1. So in that case, separating the variable again, writing y dash equal to dy by dt, you have t dt by t. So integration will provide you log of y minus 1 equal to log of t plus log of c. So y minus 1 equal to c times t. So use initial condition when t equal to 0, y is 1. So 1 minus 1, 0 equal to 0. True. But you are not able to find c. So this IVP has infinitely many solutions. क्योंकि c कुछ भी हो सकता है ना, infinitely many solutions given by. So what is solution? Y equal to this one. You can write y equal to ct plus 1 if you want, or 1 plus ct for any constant c. Okay, so depending on the situation, you may get unique solution, no solution, or infinitely many solutions. So one important thing is here that solution also depend on this condition. Okay, this initial condition. If you change the condition, then your problem may change. So from infinitely, maybe you get unique solution, or from unique solution, you may get no solution. So solution depend on initial condition as well. Likewise, in previous example too, if you change initial condition, you may get unique solution. So what is IVP? So IVP is a differential equation. This f can be non-linear function, that can be any function which contain t and y. So IVP contain differential equation first order, and with one condition, that you know the solution of this equation at one point t equal to t naught. So now I am going to state, so I will take you back. We applied variation of parameters and you wrote the solution. अच्छा, इसमें ये लगाया था हमने वेरिएशन पैरामीटर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था. सो यू गॉट सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म. अच्छा, ये म्यू दोनों से था मल्टीप्लाई, चेक कर लेना, सी इससे पूरे से मल्टीप्लाई है. ओके, पूरे से मल्टीप्लाई है. आई फॉरगॉट टू पुट ए ब्रैकेट हियर. Okay, so this is the solution of first order linear equation. And can you say this is a unique solution? So if you change, this is general solution. So this solution consists family of curves. So जैसे हमने ये एग्जांपल भी सॉल्व किया था ये. So what is general solution? Y equal to this one. So if you change C, you get family of curves. And what we do in IVP, we pose one more condition. Okay, so we pose one condition, y at t naught is y naught. So using that condition, you can find C. So that unique C will provide us unique solution. So now I'm going to state first existence theorem for linear equations. So this is an existence. Maybe you have studied in your BSc.
किसी ने पढ़ा था ये? हाँ? नहीं? चलो जो पढ़ा है हम उसको समराइज कर रहे हैं। एन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम। Okay, so the variation of parameter method leads this theorem. So the method of variation of parameters leads to this theorem. बस वही हमने लिखना है दोबारा रिजल्ट, ठीक है, फॉर्मल वे में लिखेंगे। एंड वी विल पोज वन कंडीशन, ओके, सो वी विल मेक आईवीपी। until now you wrote only differential equation, but now we pose one condition. Okay, so I am writing with those notations. Let P and F are continuous functions. So, हाँ जी, sir, how to decide about the unique and infinite solutions? which one? So, how will we tell about that infinite solutions or unique solutions are? इनफाइनाइटली ये कह रहा था ना, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक का मीनिंग क्या है? यू डोंट हैव एनी कांस्टेंट। Yes, sir. फर्स्ट एग्जांपल किया था ना, यू डोंट, कोई कांस्टेंट है, फिक्स है ये, यूनिक, ठीक है। अब नो में तो पॉसिबल नहीं है ना, जैसे 1 = 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी का मीनिंग है यू हैव दिस सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट सी। इफ यू चेंज सी यू गॉट फैमिली ऑफ कर्व। अब ये बन क्या रहे हैं? आपने C1 लिया, ये लाइन आ गई, किसी ने कहा कि मैंने C2 लेना है तो ये दूसरी लाइन आ गई, कोई कहेगा मैंने -3 लेना है C को तो ये आ गया। सो यू हैव फैमिली ऑफ कर्व्स। यूनिक नहीं है ना? Okay, sir. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस। पहली बात तो एग्जिस्टेंस, दो चीजें पढ़ रहे हैं बच्चे हम। एग्जिस्टेंस का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन। जैसे ये थर्ड एग्जांपल है, सॉल्यूशन है, देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन। सेकंड थिंग इज इन व्हाट कंडीशंस दैट सॉल्यूशन इज यूनिक, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। एग्जिस्टेंस होने का मीनिंग है कि एग्जिस्टेंस हो तो एग्जिस्टेंस तो एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, एक सॉल्यूशन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बट यूनिकनेस मींस दैट यू विल हैव वन सॉल्यूशन। एंड यूनिकनेस वी टॉक ओनली इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। आईवीपी में बात करते हैं, जर्नल में तो आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट होता है ना वहां पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईवीपी में आप क्या करोगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल निकाला था। सो यूजिंग दैट कंडीशन यू कैन डिटरमाइन द कांस्टेंट, ठीक है। सो P and F आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन ओपन इंटरवल AB and let y1 be the solution भी हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल, मतलब नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीमेंट्री इक्वेशन। जो होमोजेनियस की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीमेंट्री इक्वेशन। चलें आगे, न्यू पेज। Sir, 1 minute. हैं? 1 minute. अच्छा, फर्स्ट टाइम कौन आया आज बच्चा? आज वी हैव 21। जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पिछले 2 लेक्चर में वी ओनली रिव्यूड व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस एंड सम स्पेशल केसेस। So y1 be the non-trivial solution of complementary equation. Complementary means that
you have homogeneous one, so y dash plus pxy equal to 0 on AB. Then number first, the general solution of the non-homogeneous equation, which is y dash plus pxy equal to fx. This is non-homogeneous. On AB is शिवा, हमने प्रूव किया था ना, ये y1 यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट fx इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था, वैसे यहाँ पे था fx बाई y1 dx. ठीक है, v1 हमने, y1 क्या था, होमोजेनियस का सॉल्यूशन था. If you remember, what is y1? So exponential of p हाँ, y1 is e power minus px dx. minus p dx, है ना, ठीक है. Yes. So this is the solution of homogeneous one. Second part, if x0 is an arbitrary point and y0 is also an arbitrary real number, then the initial value problem. So what will be IVP? So this is y dash equal to, sorry, y dash plus pxy equal to fx. IVP बनाना है, so put one condition. मैं x में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पिछला आर्टिकल हमने x में पढ़ा था. x लिखो या t लिखो, कोई एक ही बात है, ठीक है. So don't be consistent with notation. Some books write dy by dx, some writes dy by dt, कुछ dx by dt भी लिखते हैं. So don't confuse with notations. So with one condition, that you know solution at x naught, which is y naught, then the IVP has the unique solution, यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू, कोई बता सकता क्या बनेगा इसको देख के? आप x नॉट से शुरू कर रहे हो, ठीक है, x नॉट से x तक चले जाओ, अब आपका इंटीग्रल डेफिनेट बन जाएगा यहाँ से x नॉट टू x, एंड यू विल फाइंड c. c निकालना, c will be y naught. y1 तो आना ही है, ठीक है, बाहर. c will be y naught. हाँ शाबाश, ये डिवाइड भी तो होगा इधर जाके. Y naught divided by integral of y1 की निकाल लोगे x नॉट पे, और दूसरा इंटीग्रल डेफिनेट बन जाएगा कहां से लेके, x नॉट से x तक, ठीक है. अब जनरली जब लिमिट वेरिएबल हो ना, लिमिट में x हो, तो अंदर वेरिएबल डमी हम चेंज कर देते हैं. यहाँ पे आप लिख दो ft, नीचे सेम y1t dt, ठीक है, राइट. सिंस डेफिनेट इंटीग्रल ओनली डिपेंड ऑन लिमिट्स, तो अगर मैं ये कहूँ कि 0 to पाई बाई 2 साइन x कंप्यूट करना है, या मैं ये कहूँ 0 to पाई बाई 2 मैंने साइन t करना है, सो बोथ आर सेम. ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल ओनली डिपेंड्स ऑन लिमिट्स. इफ लिमिट कंटेन x, then you can replace inside variable with another dummy variable. Okay, so just write something
else. Okay, so this is a Sir, unique solution on. हाँ जी, sir, how do we get the value of C? ये तो निकालना है, प्रूव करना, Sir, थ्योरम है, C की वैल्यू कैसे आई? ये तो प्रूव करना है। अभी तो मैं स्टेटमेंट लिखी है, अभी तो यू नीड टू प्रूव दिस थ्योरम। वो हिंट मैं ये दे रहा था कि इसका आप इंटीग्रल कर दो x नॉट टू x तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर x तक, देन यू विल फाइंड c। c की वैल्यू कैसे आई, ये मैंने अब इनडेफ ये चीज ये बन जाएगी x नॉट टू x। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको कब पता है, व्हेन x इक्वल टू x नॉट, यू नो द सॉल्यूशन। जब x को x नॉट फिट करोगे तो ये x नॉट बन जाएगा। तो इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम है तो ये तो जीरो बन जाना है, यहाँ x नॉट आ जाएगा, ये y नॉट है, तो c मिल गया आपको। c क्या आएगा, y नॉट बाई y वन नॉट, ये वाला। ठीक है, मतलब अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से इंटीग्रल डेफिनेट कर रहे हो तो इसका मीनिंग सेकंड में इंटीग्रल का मीनिंग ये बन जाएगा, x नॉट से लेके एक वेरिएबल पॉइंट x तक इंटीग्रल करना है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको पता है। अब c निकालना है तो यूज इनिशियल कंडीशन। सो व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, y at x नॉट इक्वल टू y नॉट। सो व्हेन x इक्वल टू x0, when x equal to x0, solution is y0. So from here you find c equal to y0 divided by y1 at x0। ठीक है, बाकी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या शो करोगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या शो करना है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है ये शो करना है आपने, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन का, तो डेरिवेटिव निकालो इसके सॉल्यूशन के और इसमें फिट कर दो जो आपकी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है इसमें। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये सॉल्यूशन होगा। और जनरल सॉल्यूशन हमने किसको कहा था कि आइसोलेटेड पॉइंट्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, सो सॉल्यूशन मींस solution on any open interval a b। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, दिस y is solution, so fit y in the equation, if it satisfies you say that this is a solution। कर लोगे कंप्लीट इसको, हैं? Yes, sir. कुछ नहीं, दो लाइनों का प्रूफ है, वैसे कंस्ट्रक्ट हमने पहले कर लिया था। प्रूफ एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, आप करके दिखाना कल मेरे को, यहाँ करवा दें, हैं? टू शो दैट, चाहे उसका नंबर लगा देते हैं इक्वेशंस के, यहीं पे लगा दो चाहे, सो दिस इज वन, नहीं नॉन होमोजेनियस को लगा दो, उसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन, सॉल्यूशन जो है से दिस इज टू, और आईवीपी का सॉल्यूशन है से दिस इज थ्री। चाहे आप दोबारा से लिख लेना सारा कुछ, है ना, जब थ्योरम प्रूफ करते हैं यू राइट एवरीथिंग अगेन। सो let PFR continues from beginnings, y1 is the non-zero solution of homogeneous, let us consider non-homogeneous। ठीक है, सो वो आप लिख लेना सारा। सो टू शो दैट, अब मैं नंबर से कॉल कर रहा हूँ, टू शो दैट 2 is the general solution of first, we must prove that
for any constant c the function defined in 2, यानी कि जो हमने y लिखा है defined in 2 is a solution of first on any open interval a b. ठीक है, तो सो यू हैव, चलो क्विकली कर ही लेते हैं. सो यू हैव y डैश, डिफरेंशिएट कर दो 2 को, इसको 2 को डिफरेंशिएट करना है, जिसको सोल्यूशन प्रूव करना है आपने 2 को. ठीक है, c तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 डैश x. ठीक है, दूसरा फंक्शन मान लो ये, कह लो ये एज इट इज. ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हो, हमने ये किया, इसका डेरिवेटिव दिस वन एज इट इज. अब सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, c का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, fx by y1 f by y1. y1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, f ही बचेगा. ठीक है, अब y1 को लेके आओ. y1 किसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस, इसका सोल्यूशन था. सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 डैश क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्स y1. तो y1 डैश की वैल्यू यहाँ फिट कर दो यहाँ पे. Therefore y डैश इक्वल टू y1 डैश क्या बन गया, माइनस पी एक्स y1 x लिख लो चलो प्रिसाइसली, c प्लस इंटीग्रल fx बाई y1 प्लस fx. ठीक है जी, कुछ कैंसिल होगा इसमें, माइनस पी एक्स. अब ये चीज दोबारा से क्या बन गई, सी द 2, व्हाट इज दिस, सी द सेकंड इक्वेशन. ये फिर y बन गया दोबारा से, y1 c प्लस y बन गया दोबारा से. yes sir. सो दिस इज yx प्लस fx. इसका मीनिंग क्या बना आपके पास, y डैश प्लस पी एक्स yx इक्वल टू fx, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, वो इक्वेशन बन गई नॉन होमोजीनियस. सो व्हिच इंप्लाइज y is a solution of non homogeneous equation. ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया. अब सेकंड, अब हम जनरल सॉल्यूशन में ये भी करते हैं, सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज क्या होती है, सो दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑन एनी ओपन इंटरवल. ये भी हमने शो करना है. उसको कैसे शो करोगे, to show that this is a general solution you need to prove two things. First thing, that this guy satisfy y satisfy this equation. वो हमने कर दिया प्रूफ, है ना, y को डिफरेंशिएट किया तो आपको इक्वेशन मिल गया ये ऊपर वाला. ठीक है, ये किया ना हमने. अब सेकंड पार्ट है कि जनरल सॉल्यूशन हम तब कहेंगे कि this y satisfy the equation on any open interval a b. इसको प्रूफ कैसे करोगे,
बात समझ आ गई क्या बोला मैंने? हैं? एनी Sir, वन y should belong to AB proof करना है. जनरल सोल्यूशन की, देखो सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं। सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था ना कि अ, अगर कोई सोल्यूशन है सिर्फ एक या दो पॉइंट पे ही सेटिस्फाई करता है तो उसको हम जनरल सोल्यूशन नहीं कहते। व्हाट इज जनरल सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन इज डिफाइंड ऑन सम बिगर Open इंटरवल, interval. ऑन सम इंटरवल। तो हमने ये तो कह दिया कि सेटिस्फाई करता है, तो सोल्यूशन तो है। तो अब हमें ये भी कहना पड़ेगा ना कि ये सोल्यूशन है, बट दिस इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ए सोल्यूशन फॉर एनी x बिलोंग्स टू एनी ओपन इंटरवल ए बी। ये हमने शो करना। कैसे करोगे? एनी वन, एनी आइडिया? से कुछ तो कहो, रफली कहो, कुछ भी कहो। बोलो दिव्या। बैठे हो कैसे चला के चले जाते हो? जैस्मीन, you can speak by unmuting yourself. देखो ओपन इंटरवल में सेटिस्फाई करेगा तो इसका मीनिंग है कि आप ये शो कर दो जो आपका सोल्यूशन है वो ओपन इंटरवल में डिफाइन है। जो आपने सोल्यूशन लिखा है वो किसी ओपन इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में डिफाइन है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं है। तो इससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है। सो टू वी हैव लेस टाइम, सो टू प्रूव y is a solution on open interval AB, yeah, to prove the now we prove since, अब जो y1 लिखा था हमने, y1 क्या था? e पावर माइनस p dx। आल्सो वी हैव, जो हमने वेरिएशन पैरामीटर में आपने ये लिखा था y इक्वल टू u टाइम्स y1। ठीक है, जो वेरिएशन पैरामीटर लगाया था। आल्सो वी हैव, जो u फंक्शन था वो क्या होगा? y डिवाइड बाय y1। ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ये कभी जीरो तो होता नहीं है। ठीक है, exponential never vanishes, so this is defined. Also we have u, क्योंकि आप y1 से डिवाइड कर रहे हो ना, अगर ये जीरो जीरो बन जाए फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते। बट y1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल कभी वैनिश नहीं होगा, कभी जीरो नहीं बनेगा। सो u इक्वल टू y1 इज डिफाइंड ऑन सम इंटरवल ए बी। ये चीज हम कहना चाह रहे हैं कि वो चीज वेल डिफाइंड है। मोर ओवर सिंस जो y डैश मैंने लिखा था, y डैश इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस एफ था, और जो y1 था वो होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, वो माइनस पी y1 था। ठीक है जी। अब u डैश निकालिए आप। बट ये u डैश प्रोडक्ट रूल लगा लो चाहे u अपॉन v, डिवीजन वाला, नीचे वाला
एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू फिट कर दो। सो y1 एज इट इज व्हाट इज y डैश माइनस p y प्लस f माइनस व्हाट इज y1 डैश फ्रॉम दिस y1 dash is minus p y1 y as it is divide by y1 square। तो उसमें फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा f by y1 एंड ऑन integrating you got u equal to c plus integral f by y1 dx। ये हमने पहले भी लिखा था, और हमारे पास सोल्यूशन y इक्वल टू क्या है, u y1। देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। चलो मैंने ना ये शो करना है कि ये चीज ना जो y है पूरे इंटरवल में डिफाइन है। तो y के दो कंपोनेंट हैं, एक u है एक y1 है। ठीक है, तो मैं ये शो कर रहा हूं कि ये दोनों कंपोनेंट ही ओपन इंटरवल में डिफाइन है, वेल डिफाइन है। तो फर्स्टली y1 है, y1 कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल पावर है, दिस इज नेवर जीरो, दिस इज नॉन जीरो एंड वेल डिफाइंड। y1 डिफाइन है। अब दूसरा चीज है u। तो u किससे बना है, u क्या है, y बाई y1। ठीक है, तो u को मैं वेल डिफाइंड शो करना चाह रहा हूं, तो u को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, u को लिखा, u डैश निकाला, u को मैंने चेंज कर दिया y1 में। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली y वेरिएबल था ना, y अपने आप भी कैंसिल हो गया यहाँ से। तो u को मैंने चेंज रिलेट कर दिया जो वेल डिफाइंड चीजें हैं। f राइट हैंड साइड है, f नॉन जीरो है। अगर f जीरो बन गया इसका मीनिंग होमोजीनियस है, तो वो पुराना केस है। ठीक है, वैसे f ऊपर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। y1 आपका नॉन जीरो है ही। ठीक है, तो u को मैंने लिख लिया f और y1 की टर्म से, और वहां से इंटीग्रेशन से आपको u ये मिल गया जो हमने पीछे लिखा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, u is defined on some interval, y1 is also defined on some interval, and y is a product of u and y1, so this is also defined on some interval ab। यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है, किसी एक इंटरवल पे ये सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन को। सो दिस इज ए सॉल्यूशन। So what we conclude, so y is a general solution। To complete part B, you need to show that this is a solution of IVP। तो part B में so what we have y equal to y1x, part A से ये solution था, उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, टू इस फॉर्म में x0 to x ft y1t dt। okay, since use initial condition y at x naught equal to y1 at x naught, then c x naught to x naught ft y1t dt। So this will give you y x naught equal to y1 x naught times c। So y x naught equal to y naught if and only if you take c equal to 1। y x naught upon y1 x naught, और y x naught को मैंने y naught भी लिखा हुआ है। Okay, so to prove part B,
firstly I have written the solution in definite integral form starting from x0 to any point x. Okay, so then by using initial condition, when x equal to x0, so replace x with x0 everywhere and then find c. So if this is true, then you have c equal to y0 by y1 plus y by x naught. So unique solution is y, ये सॉल्यूशन तो यही है, जनरल में यूनिक बनाना है। c की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, y0 डिवाइड बाय दिस वन एंड बाकी सब कुछ सेम है, x नॉट टू x ft। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। देखो मतलब कोई नई चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं ना, उसी को हमने रीस्टेट किया है। आई विल टेक यू बैक। रीसेट क्या किया है हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि y सॉल्यूशन है, ठीक है, y सॉल्यूशन है, तो आपने क्या किया, अब सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो हमने सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके ओडी बना दी हमने, वो ओडी मिल गई। तो आप रिवर्स डायरेक्शन में गए, सॉल्यूशन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, तो इसका मीनिंग है ये सॉल्यूशन है। और जनरल में हमने ये शो करना है कि वैसे हम वेरिएशन पैरामीटर में आप लिखते क्या हो, y इक्वल टू यू y1, तो मेरा y1 नॉन जीरो था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मैंने u निकालना है कि क्या u में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या u आपका ओपन इंटरवल पे डिफाइन है या नहीं है। तो मैंने u को लिख दिया आगे u डैश से मैंने u को लिख दिया, u डैश निकाल के f बाई y1 लिखा, तो u का इंटीग्रल पॉसिबल है which is defined on any open interval, there is no problem. So you find u, hence you find y. So y is a general solution. Second part में आपने IVP बनानी है जनरल सॉल्यूशन से। So put a condition y at x naught, यानी कि ये कंडीशन डालनी है आपने, कंडीशन क्या डालनी है, when x equal to x naught, y equal to y naught, ये कंडीशन डालना है। तो पहले मैंने इंटीग्रल को बनाया, डेफिनेट x नॉट टू x लिखा, देन यू पुट ए कंडीशन, ठीक है, ये सब कुछ y ऑफ x है, वैसे y ऑफ x की जगह x नॉट लिख दो, फाइंड c निकाल के यहाँ पे डाल दो इसमें, सो फिट c हियर, c यहाँ डाल दिया तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज विदाउट कांस्टेंट, सो आई एम सेइंग दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी, एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है ये, यू कैन चेंज सी, बट इन आईवीपी बाय फिक्सिंग द कांस्टेंट सी यू हैव फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन। और ये नॉलेज हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में। एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू टू स्टडी existence and uniqueness for non-linear equations. So this was linear one. So one हाँ जी, more class we are having today. कौन सा बच्चे? सर एक क्लास और है हमारी आज ट्यूटोरियल की। हाँ उसमें करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कितने बजे है? 4:20। हाँ उसमें अभी ट्यूटोरियल नहीं लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तो वी विल कंटिन्यू इन लेक्चर एज ए लेक्चर, ठीक है। जब थोड़ा सा हो जाएगा सिलेबस फिर देन वी विल टेक ट्यूटोरियल। ओके So सर। today we will meet again at 4:20. यस सर। Okay. So तब तक इसको पढ़ना, कोई क्वेरी हो तो पूछना, ठीक है। ओके सर। So bye for now. थैंक यू सर।